Imagine living in a country where your rights are decided by your skin color. Yes, it is the reality of South Africa during the system of apartheid. What is apartheid? Apartheid is the discrimination on the basis of skin color, which is called racial discrimination. And today, this chapter introduces us to Nelson Mandela, a historical leader who fought against the injustice and become a symbol of freedom. Hi, I'm Shweta, your English teacher, and today we are going to read the second chapter from the first flight book of class 10, which is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This chapter tells us about the journey of Nelson Mandela, a great historical leader of South Africa. Let's get started with the chapter. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, who born on 18 July 1918. ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. The first black president of South Africa. What was special about him? He was the first black president of South Africa. Excerpts from Long Walk to Freedom include a description of the inauguration ceremony. Long Walk to Freedom से ये एक्सेप्ट लिया गया है जो हमें क्या बता रहा है इनॉग्रेशन सेरेमनी का. Citations from his speech, उनकी स्पीच से कुछ पार्ट्स हैं. His journey to being a freedom fighter, कैसे वो एक नॉर्मल पर्सन से, एक कॉमन सिटीजन से एक फ्रीडम फाइटर बने. द स्ट्रगल अलॉन्ग विद ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर्स, उनका स्ट्रगल जो और भी कुछ लोग उनके साथ थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो स्ट्रगल किया है. एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े. In South Africa, a brutal practice named apartheid was followed. South Africa में apartheid follow किया जाता था. Apartheid क्या है? Apartheid refers to discrimination between people on the basis of their race, on the basis of their skin color. It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights. जो dark-skinned people थे, like जो black people थे, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे. This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their way to society where there will be no discrimination on the basis of their color, कास्ट, रेस, एज और जेंडर. तो ये चैप्टर हमें बताएगा कैसे नेल्सन मंडेला ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उन्होंने मेक श्योर किया कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए उनकी कंट्री में से. फाइन, चलिए. Theme of the chapter: the struggle for independence, equality and injustice is the subject of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Independence, equality and justice. The chapter is a section taken from Nelson Mandela's autobiography, a politician and anti-apartheid revolutionary from South Africa. जो एक politician थे, so he had to become a politician. Why? क्योंकि उनको जब इन चीज़ों से, अगर उनको अपने आप को इन चीज़ों से निकालना है तो उनको कहीं ना कहीं स्टैंड करना होगा, और वो हमेशा क्या है, गलत चीज़ों के लिए लड़े. The chapter describes Mandela's early years and his path to becoming a political active member of African National Congress, ANC. तो उनकी शुरुआती लाइफ और बाद में कैसे वो एक पॉलिटिकल लीडर बने, कैसे उन्होंने ANC ज्वाइन किया, ये जर्नी. Which battled against South Africa's apartheid system, जिसने किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी? अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट. Additionally, it emphasizes his 27 years
incarceration for his political involvement, his eventual release, and his contribution to the nation's transformation into multiracial democracy after his release. So Mandela's steadfast dedication to the struggle for freedom, equality and justice is clear throughout the chapter. कैसे वो लड़े लड़ाई, उन्होंने कैसे लड़ी कि लोगों के बीच में वो जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको उन्होंने ख़त्म किया। उनका 27 इयर्स का जो स्ट्रगल था जब उनको जेल में भी रखा गया, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। डिस्पाइट द पर्सनल सेक्रीफाइसेस ही मस्ट मेक, ही इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग अबाउट चेंज एंड क्रिएटिंग अ मोर जस्ट सोसाइटी फॉर एवरीवन इन साउथ अफ्रीका। ही ऑल्सो स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ non-violence and peacemaking in achieving these objectives. Fine. So this was the theme of the chapter. About the author Nelson Mandela, है ना। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है ये। सो नेल्सन मंडेला born on 1918 and died in 2013 was a South African anti-apartheid revolutionary political leader and the country's first black प्रेसिडेंट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो ऐसी कंट्री जहाँ पे ब्लैक पीपल को उनके नॉर्मल जो राइट्स होते, कॉमन राइट्स होते, वो भी नहीं दिए जाते थे, ऐसी कंट्री में वो एक प्रेसिडेंट बने। दिस इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट। सो आफ्टर स्पेंडिंग 27 years in prison opposing white minority rule, he led negotiations to end apartheid and fostered racial reconciliation, winning the 1993 Nobel Peace Prize। 1993 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। फाइन, चलिए ये है चैप्टर की समरी। एक बार समरी देखते हैं। देखिए ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का कुछ पार्ट है जिसमें उनकी जर्नी, कैसे वो एक कॉमन सिटीजन से एक पॉलिटिकल लीडर बने, कैसे वो एक प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर उनको कुछ उनके जो नॉर्मल जो राइट्स होते हैं, जो कॉमन राइट्स होते हैं, वो भी नहीं दिए जाते थे। ऐसी कंट्री में अगर एक पर्सन प्रेसिडेंट बन रहा है, दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग। तो कैसे वो जर्नी उनकी शुरू हुई और कैसे कैसे उन्होंने ये अचीव किया, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918, the first black president of South Africa. It begins with a description of their inaugural ceremony which took place on 10th of May 1994, where the entire nation along with many international leaders embraced the victory of a newly and fairly elected government। जहाँ पर एक न्यू और फेयर गवर्नमेंट बनाई गई, जहाँ फेयर कैसे कि वो क्या कहते हैं, लोगों ने अपनी सहमति से उसको बनाया और वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया। सो इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 deputy presidents followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters। ये जब इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पर किस किस की स्पीच हुई है और एयर शो हुआ था वहाँ पर। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। Long ago in the first decade of 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life living hell for dark skinned population। डार्क स्किन पीपल के लिए वो लाइफ, इट वॉज नथिंग देन it was, you can say, a hell for them। It gave rise to one of the most inhuman societies of the world. Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day. He referred to the citizens as the greatest asset of country. It is these people he gathered his courage from. Mandela believes that courageous is not the man who is fearless but the man who has overcome fear। क्या बिलीव था उनका कि courageous वो पर्सन नहीं होता है जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो अपने डर को जीत लेता है। He also mentioned the 2 responsibility every human has
and how in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected. मतलब सोसाइटी को, अपनी कंट्री को आगे रखते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट किया है. He became a man of people when he realized that an idea of freedom was an illusion for him and people like him. मतलब जब वो छोटे थे तो उनको लगा था कि वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उनको समझ आया, पर तब उनको पता चला कि इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं ना कहीं भी, फ्रीडम तो है ही नहीं कहीं भी. वो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने ऐसे उनको बाउंड कर रखा है, आप यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये आपके राइट नहीं है, वो नहीं है. तो उनके जैसे बहुत सारे लोगों के पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं. तो उनके लिए ये फ्रीडम, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन फॉर हिम. सो इट वॉज देन ही ज्वाइंड द ANC and fought for his rights till he became the first black president of the nation. According to him, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. उनके हिसाब से oppressor भी इतना ही बड़ा prisoner है जितना बड़ा oppressed है. As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. अगर वो लोगों की फ्रीडम को curtail करता है तो वो ह्यूमैनिटी मतलब वो खुद ह्यूमैनिटी से डिप्राइव्ड हो जाता है. So thus the oppressor too is not free. चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना चैप्टर. So before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. इससे पहले कि हम चैप्टर पढ़े, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए अपार्थाइड क्या है. अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता है, उनके स्किन कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करता है. Can you say which of the three countries named below had such political system until very recently? तो कौन सा था, यही हम पढ़ने वाले हैं अभी. साउथ अफ्रीका में ऐसा सिस्टम था. Have you heard of Nelson Mandela? Yes, we have heard. Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Sorry. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections, 30 years means 27 years तो उन्होंने स्पेंड किए थे. 30 years उनको और भी कई बार जो है जेल जाना पड़ा. Fine. So finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president. कब बने black president वो साउथ अफ्रीका के 1994 में. So in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? कौन सा occasion था? It was an oath ceremony. Check your guess with this न्यूज़ आइटम ऑफ 10 मई 1994. नाउ व्हाट इज इट? ये जो है एक न्यूज़पेपर क्लिप है एक. ओके, जब 1994 में वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो ये उसकी न्यूज़ है. ओके, क्या न्यूज़ आई? So Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries of white rule. White rule के बाद उन्होंने क्या किया था वहाँ पर, मतलब he became the president. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa. ये first democratic election थे वहाँ के. The inauguration ceremony took place in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. 140 countries से लोग वहाँ पर आए around the world. Never imagine, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा था कि अब ये ब्यूटीफुल लैंड जो है, अब दोबारा इस तरह का ऑपरेशन कभी नहीं होगा यहाँ पर, इस धरती पर. सो jubilant scenes of the streets of Pretoria followed by ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy.
तो ये क्या है, ये न्यूज़पेपर क्लिप थी जब वो हिस्टोरिकल सेरेमनी हुई थी, उसके बाद ये क्लिप जो न्यूज़पेपर में आई थी। तो जहाँ पर सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी होती थी, सिर्फ वाइट पीपल बैठे होते थे, वहाँ पर आज वाइट है, ब्लैक पीपल है, हर स्किन हर कलर के लोग वहाँ पर बैठे हैं, सबने साथ में उसको सेलिब्रेट किया है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं जो बिल्कुल फ्रीली और फेयरली हुए हैं, और साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। फाइन, ओके। सो 10th May dawned bright and clear। कब की बात है ये? 10th of May की बात है। 10th May dawned bright and clear। वो सुबह, वो सवेरा बहुत ब्राइट, बहुत ही क्लियर था। For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ओके, सो पिछले कुछ सालों से मैं बहुत बड़ी बड़ी मतलब डिग्निटरीज से मैं मिलता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रगल था उस टाइम की वो बात कर रहे हैं, और आज वो जब एक ओथ लेने वाले हैं टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब वो वहाँ पर क्या है कि इतने लोग वहाँ पर आएंगे, इनॉग्रेशन कैसा होगा, सबसे बड़ी गैदरिंग होगी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की धरती पर। ओके, सो द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। कहाँ पर होने वाली है सेरेमनी? प्रिटोरिया में। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट। तो ये जहाँ पर सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी होती थी इस जगह पर, आज वहाँ एक रेनबो बताया है उन्होंने उसको। क्यों? क्योंकि काले, गोरे, वाइट्स, ब्लैक्स, मतलब हर तरह के लोग वहाँ पर आने वाले हैं, सब ये सेरेमनी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये बहुत एक बड़ा इवेंट था। क्या होने वाला था वहाँ पर? इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक non-racial government। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani। तो उस दिन नेल्सन मंडेला किसके साथ गए थे? अपनी डॉटर जिनानी के साथ। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president। फर्स्टली मिस्टर डी क्लर्क की स्पीच होती है जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का ओथ लेंगे। देन थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके बाद थाबो म्बेकी की स्पीच होगी जो किसकी ओथ लेंगे? फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की। डी क्लर्क सेकंड and Thabo Mbeki first deputy president। So when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to well-being of republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said। तो उस समय उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मानते हुए, अपने आप को कंट्री के लिए डिवोट करते हुए क्या कहा उन्होंने? अब ये उनकी स्पीच है। क्या कह रही हैं? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी ग्लोरी को यहाँ पर, मतलब हम एक तरह से एक जश्न मनाने, खुशी मनाने आए हैं। किसका? न्यू बॉर्न लिबर्टी का। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब वो जो एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जहाँ पर स्किन कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें आती रही हैं, वहाँ पर अब एक ह्यूमैनिटी बोर्न होगी, एक सोसाइटी बोर्न होगी जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil। हम जिन्हें कभी इन सब चीज़ों से बाहर ही निकाल दिया गया था, आज क्या है? हमें वो प्रिविलेज मिला है कि हम अपने नेशन को अब यहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम को हम होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our
distinguished international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो एट लास्ट हमने क्या है, पॉलिटिकल जो हमारा इमेंसिपेशन था उसको हमने अचीव किया है और हम प्लेज लेते हैं कि हम अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को डेडिकेट कर देंगे और कंट्री में इस तरह की जो चीज़ें रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. सो इस तरह का ऑपरेशन कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबा रहा है, दूसरे इंसान को उसको बाउंड कर रहा है, ये चीज़ें अब दोबारा इस ब्यूटीफुल लैंड पर नहीं होने वाली हैं. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, God bless Africa. So these were the words by Nelson Mandela while taking the oath for becoming the first Black president of South Africa. So a few moments later, we all lifted our eyes in awe and as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अभी क्या है, वो एयर शो, वो थोड़ी देर में जैसे उन्होंने बोला उसके बाद एयर शो हुआ है जो बहुत ग्रैंड है, बहुत हैरानी से लोग ऊपर देखते हैं, वहाँ पर एयर शो हो रहा है. It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये सिर्फ उनका प्रिसीजन और मतलब मिलिट्री फोर्स का ही सिर्फ वहाँ पर डिस्प्ले नहीं था, ये डेमोन्स्ट्रेशन था किसका, उनकी लॉयल्टी का, मिलिट्री की लॉयल्टी का. किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति. जो अभी अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है, उसके लिए जो लॉयल्टी थी वो दिखाने जा रही थी मिलिट्री force. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and public, their chest beckoned with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो उसके बाद क्या हुआ है, उनको उनके जो मीन्स चेस्ट बेडेक्ट विद रिबन्स, मतलब उनको क्या है, उनके जो मेडल्स हैं वो मिले हैं. और I was not unmindful to the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर ये कुछ साल पहले हुआ होता तो यहाँ पर वो मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते, जो सब आके मुझसे मेडल ले रही हैं और मुझे सैल्यूट करके जा रही हैं. अगर यही चीज़ें कुछ साल पहले होती और मैं यहाँ पर होता तो यहाँ पर मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते, यहाँ पर मुझे अरेस्ट कर लिया होता. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag. तो थोड़ी देर में जो है जेट्स आते हैं ऐसे बनाते हुए, ओके, और इस तरह से स्मोक छोड़ते हुए अलग अलग कलर का, और साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाते हुए वो वहाँ से निकलते हैं. ओके फाइन, चलिए. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. अब वहाँ पर two national anthems जो है वहाँ पर गाए गए, and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem the old anthem of Republic. अब दो, एक whites ने national anthem गाया है, एक black people ने. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अभी क्या है, वो उनको लिरिक्स याद नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको वो कभी वो चीज़ें, वो राइट्स उनको दिए ही नहीं गए. लेकिन हाँ, आने वाले कुछ टाइम में वो उनको बिल्कुल दिल से याद हो जाएंगे. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the
20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो जब मैं inauguration वाले दिन I was feeling overwhelmed विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब जब की बात कर रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ था, जब पहले जो ये सिस्टम बने थे, ऐसे सिस्टम बने थे कि ब्लैक पीपल को कैसे कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था, कैसे उनको हर चीज़ से डिप्राइव कर दिया जाता था, उनके 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 बेसिक राइट्स भी उनको नहीं दिए जाते थे। क्यों नहीं दिए जाते थे? क्योंकि वो ब्लैक थे। तो आज वो सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, अब वो ऐसा मतलब ऐसा इतना इनह्यूमन था वो कि आज तक भी इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, कि वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century, अब 20th century के लास्ट डेकेड में एंड माई ऑन 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom for all peoples regardless of colors of their skin। लेकिन आज वो सिस्टम जो है चेंज होने वाला है, जहाँ पर हर एक पर्सन को उसके राइट्स मिलने वाले हैं, हर एक को सेम प्रिविलेज मिलेगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted और repaid। तो क्या है, अब वो उन सेक्रीफाइसेस की बात कर रही हैं जो लोगों ने किए हैं, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जो इतना सफरिंग, जो इतना उन्होंने सफ़र किया है, ओके, जिसको रीपेड नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको चुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए, उन्होंने जो इस धरती के लिए किया है, उसको किसी भी तरह से क्या कहते हैं, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। यहाँ खड़ा होके क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको याद कर रहा हूँ, और या मैं उन सब लोगों की जगह खड़ा हूँ जो आज इस ग्लोरियस डे को, इस विक्ट्री को देखने के लिए नहीं है। मीन्स उन्होंने सेक्रीफाइस दिए, उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस लड़ाई में, लेकिन इस लड़ाई से पहले ही वो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन आज मैं उनकी जगह यहाँ पर जो है मैं खड़ा हूँ, जो मुझसे पहले चले गए हैं। That long and noble line ended and now began again with me। I was painted that I was not able to thank them and that day were not able to see what their sacrifices had wrought। मतलब मैं नहीं बता सकता कि उनके sacrifices क्या लेकर आए हैं, कितना बड़ा चेंज लेकर आए हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt। तो जो अपार्टहाइड पॉलिसी है, उसने एक ऐसा वॉन्ड बनाया हुआ है जो इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। हम लोग मतलब बहुत साल, अगर जनरेशन्स नहीं तो कम से कम बहुत साल तो इसको रिकवर करने में हमें लग जाएंगे। यस, अभी चेंज आया है, अभी गवर्नमेंट बनी है, बट जो लोगों को इतने जो घाव मिले हुए ना उस चीज़ से, जो उन्होंने फील किया है, जो उन्होंने सफ़र किया है, जो उन्होंने बर्दाश्त किया है इतने साल तक, उसको कवर करने में वो इतना आसान नहीं है। इसमें जनरेशन्स नहीं तो कम से कम साल, कुछ साल तो लगेंगे उसको रिकवर करने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambos and Walter Sissolos and the Chief Luthulis and Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time। ये सब क्या हैं? ये सब वो लोग हैं जो नेल्सन मंडेला के साथ उनकी लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया था, पर आज वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, आज वो उस विक्ट्री को देखने के लिए नहीं है। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like
may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. हो सकता है कि इतना बड़ा ये बनाने के लिए, इतना बड़ा दिन बनाने के लिए, इतना बड़ा एक कैरेक्टर बनाने के लिए शायद अत्याचार इसी डेप्थ में होता है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरी कंट्री को किसके लिए जाना जाता है? मेरी कंट्री में मिनरल्स बहुत है, जो कहाँ है? जो मिट्टी के नीचे हैं, सॉइल के नीचे है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल जो डायमंड्स है ना, वो यहाँ के लोग हैं, जो बहुत क्या है, बहुत प्योर हैं, किसी भी डायमंड से ज्यादा प्योर हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned and meaning of courage. Time and time I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैं देखता रहा हूँ कितने लोगों ने कितने men और women ने अपनी लाइफ को sacrifice किया है इसके लिए, आज के दिन के लिए. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not absence of fear. बेटा ये important line है. But the triumph over it. Courage, हिम्मत क्या है? हिम्मत डर से डरना नहीं है. हिम्मत डरना ऐसा नहीं है कि जो डरता नहीं है वो courageous है. नहीं, courageous person कौन है? जिसने अपने डर को जीत लिया. जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसी काम को करो, उसको overcome करो. Now then you can win only. The brave man is not who does not feel afraid. बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट वो है जो अपने डर को जीत लेता है. डर के आगे जीत है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than it's possible. कोई भी इंसान जन्म लेते ही नफरत करना नहीं सीख लेता है. जन्म लेते ही किसी को नहीं पता होता है. नफरत करना सिखाया जाता है. हम बताते हैं ये ऐसा है, इससे नहीं बोलना है, ये वैसा है, इससे नहीं बोलना है. और वो हम जब बच्चों के सामने ये चीजें कर रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं. तो जब हम नफरत करना सिखा सकते हैं तो क्या हम प्यार करना नहीं सिखा सकते? क्योंकि प्यार एक नेचुरल फीलिंग है, जबकि वो और ज्यादा आसानी से सिखाया जा सकता है. तो कोई भी बॉर्न ही ऐसी फीलिंग लेकर के नहीं आता है. Even in the grimmiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो वो कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा तो मैंने ये तो मैंने अब एक झलक देखी है उस टाइम पे भी, जब मुझे और मेरे साथियों को पुश कर दिया गया था, मतलब बिल्कुल हमें बाउंड कर दिया गया, तब मैंने वहां पर गार्ड चाहे एक सेकंड के लिए उसको हम पे दया आई. तो ये एक नेचुरल फीलिंग है. और जब वो एक सेकंड ही मेरे लिए काफी था मुझे कीप गोइंग रखने के लिए कि नहीं, चेंज एक दिन आएगा. In life, every man has twin obligation. हर इंसान के दो obligations होते हैं. क्या? Obligation to his family, to his parents, to his wife, children, और दूसरा क्या है? To his people, like towards his country, towards his community. Okay. So in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. तो अगर normally हम बात करें तो दोनों को ही अपनी एबिलिटीज के ऊपर लोग जो है परफॉर्म कर सकते हैं. बट जब हम साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री की बात करते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन. लेकिन अगर मैं साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री की बात करूं तो मेरे जैसे इंसान के लिए, किसके लिए, जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलना नामुमकिन था. क्यों था? इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and
rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. मतलब जब आप साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपनी कंट्री की बात करते हो ना, तो आपको अपने लोगों से अलग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? आप अपने राइट्स के बारे में बात करोगे, अपनी कंट्री के बारे में बात करोगे, तो क्या होगा? आपको जेल में डाल दिया है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी फैमिली से दूर हो। तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑब्लिगेशन आप निभा सकते हो, टुवर्ड्स द कंट्री और टुवर्ड्स द फैमिली। अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो वही जो रूल चल रहे हैं आप उनको चलने दो, बस आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो क्या होगा? आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। तो उसी तरह से उनको भी अलग कर दिया गया। उन्होंने अपने कंट्री के टुवर्ड्स जो उनके जो ड्यूटीज थी वो तो की, लेकिन वो अपनी जो ड्यूटी थी एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर, अ हस्बैंड, उनसे उनको डिप्राइव कर दिया गया था। I was not born with hunger to be free. I was born with free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of स्लो मूविंग बुल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था। क्यों? मेरा जन्म तो बिल्कुल फ्री, मैं आज़ाद था। खेतों में भागने के लिए, नदियों में तैरने के लिए, अपने गांव में आसपास घूमने के लिए मैं फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man and code. जब तक मैं अपनी फैमिली के वो जो रूल्स जो पहले बने हुए थे उनको मैं फॉलो कर रहा था, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना इंसान से ना भगवान से, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये जो फ्रीडम है ये तो एक भ्रम है, एक्चुअल में हम फ्री है ही नहीं। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी एंड आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं फ्री तो हूँ ही नहीं, मेरी फ्रीडम तो मेरे पास है ही नहीं, और जब मैंने इस चीज़ को जानना शुरू किया तब मुझे फ्रीडम के लिए एक आई वॉज हंग्री फॉर माई फ्रीडम। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, दैट ट्रांजिटरी freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। तो एज अ स्टूडेंट मुझे चाहिए था कि मैं जो चाहूँ वो पढूँ, रात को मैं बाहर रह सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ? जोन्सबर्ग में मैं तड़पा किसके लिए? फॉर द बेसिक एंड ऑरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे मेरी फ्रीडम मिले, मैं उसके अकॉर्डिंग अर्निंग कर सकूं, शादी कर सकूं और अच्छी फैमिली मतलब अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा लाइफ जो है मैं स्पेंड कर सकूं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली I not free but my brothers and sisters were not free। मतलब फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्रीडम है ही नहीं। फ्रीडम तो उनके लिए सिर्फ एक इल्यूजन है कि हाँ फ्री हो, एक्चुअल में तो हम फ्री है ही नहीं। हमारे पास बेसिक राइट्स नहीं है, हम अपने हिसाब से पढ़ नहीं सकते, अपने हिसाब से अर्निंग नहीं कर सकते, अपने हिसाब से जॉब नहीं कर सकते, अपने हिसाब से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फ्री कैसे हैं? I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। मेरी फ्रीडम नहीं, बहुत सारे लोगों की फ्रीडम को कर्टेल किया गया। सो दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने ANC ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और फिर उस तरह से जब मुझे अपनी लिबर्टी की, अपनी फ्रीडम की भूख, मेरे लिए मेरी पूरी कंट्री की फ्रीडम की भूख बन गई। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। That transformed a frightened
young man into a bold one. वो जो था, वो जो फ्रीडम थी, वो जो हंगर थी, उसने एक डरे सहमे से एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को, एक बोल्ड इंसान बनाया. That drove a law abiding attorney to become a criminal. law abiding person को एक क्रिमिनल बना दिया. That turned a family loving husband into a man without a home. एक ऐसे इंसान को जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, उसको एक मैन विदाउट होम बना दिया. That forced a life loving man to live like a monk. जो अपनी जिंदगी से प्यार करता था, उसको एक monk बना दिया. उस हंगर ने, वो फ्रीडम उनको चाहिए थी. I am no more virtuous to self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. मतलब बहुत बड़ी लग्जरीज नहीं चाहता था, लेकिन छोटे छोटे जो राइट्स थे वो भी नहीं थे हमारे पास. I was not allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains of any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मतलब हम सब एक ऐसी कड़ी से बंधे हुए थे कि हमारे पास हमारे बेसिक राइट्स भी नहीं थे, हमें हर चीज से डिप्राइव कर दिया गया था. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-minded. हाँ, मुझे ये पता था कि ऑपरेसर भी ऑपरेस्ड की तरह ही है. कहीं ना कहीं अगर वो ह्यूमैनिटी को दबा रहा है तो खुद भी ह्यूमैनिटी से डिप्राइव्ड है. वो अपने ही हेट से, अपने ही प्रिजुडिस से, अपने ही नैरो माइंडनेस से बंधा हुआ है. सो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर मैं दूसरों की फ्रीडम ले लेता हूं तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूं, कहीं ना कहीं मैं भी उन चीजों से बंधा हुआ हूं. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. तो मुझे लगा कि ऑपरेसर भी ऑपरेस्ड भी दोनों ही क्या है, ह्यूमैनिटी से डिप्राइव है, दोनों के पास ही ह्यूमैनिटी नहीं है. तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, ऑपरेसर कौन होता है? जो लोगों के ऊपर अत्याचार करता है. ऑपरेस्ड कौन होता है? जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है. मतलब जो गलत, जिसके साथ गलत हो रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है कि वही जंजीरों में बंधा हुआ है, जो गलत कर रहा है वो भी बंधा हुआ है. कैसे? अपनी नैरो माइंडनेस से, अपने अहंकार से, अपनी ईगो से वो भी बंधा हुआ है. वो भी ह्यूमैनिटी से कहीं ना कहीं बहुत दूर है. तो वो खुद एक क्या है, वो खुद भी एक ऑपरेस्ड है, तो उसको क्या ही कह सकते हैं. ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही करना है. प्रिपेयर, लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, इसको कर लेना. द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड लाइक आर robbed of the humanity, says Nelson Mandela. What does he mean to say? उनका मतलब क्या है ये बात कहने का, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड में मतलब दोनों एक जैसे हैं according to him. So Mandela says it right that the oppressor and the oppressed alike and robbed of the humanity. क्यों है ऐसा? Both are the victims of hatred. दोनों ही हेट के विक्टिम हैं. एक के साथ हेट किया जा रहा है, एक के दिमाग में जो है वो नफरत भरी हुई है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो दूसरों की फ्रीडम को कटेल कर रहा है वो खुद भी क्या है, प्रिजनर है. किसका? हेटर्ड का. He has prejudice and He has prejudice and narrow mindedness, both are robbed of their humanity. वो खुद भी अपने घमंड का, अपने narrow mindedness का जो है शिकार है, वो खुद भी prisoner है. दोनों से को ही humanity से दूर कर दिया गया है. एक को दबाया जा रहा है और दूसरा जो दबाने वाला है वो खुद अपने दिमाग में जो उसके जो घमंड, जो चीजें भरी हुई हैं उनसे वो बंधा हुआ है. So freedom is natural to all living beings. Freedom सबके लिए natural है. Then man has to discharge his personal and social obligations. Without freedom, man can't discharge his duties. He is destined to live a lawful life with freedom. The person who snatches this freedom is really an oppressor. His humanity is gone. It is the same case with the oppressed because he becomes oppressed by अदर्स. ओके, तो क्या है कि फ्रीडम जो है वो सबके लिए नॉर्मल है, सबके लिए नेचुरल है. लॉ को फॉलो करते हुए अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए. लेकिन आप अगर किसी और की फ्रीडम को बाउंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेटर्ड से, अपने ईगो से, अपने घमंड से, अपने अहंकार से आप खुद भी बाउंड हो. तो ऑपरेस तो आप खुद भी हो. फाइन. No one is born hating another person because of
the color of their skin, or his background on his religion. Do you agree? Elaborate on the basis of chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. मतलब कोई भी जनजात कोई हेट नहीं करता है, उसको सिखाया जाता है। तो क्या नफरत से करना सिखाया जाता है, तो क्या प्यार करना नहीं सिखाया जा सकता? ये हमने चैप्टर में पढ़ा है ना। सो थ्रू his fight for freedom, Nelson Mandela demonstrated how hatred was more of a social construct than a basic human trait. मतलब नफरत क्या है, एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट नहीं है, ये सिखाया जा रहा है, ये जबरदस्ती लोगों के दिमाग में डाला जाता है। He talks about how he observed racism among white people which was fostered socially rather than naturally. मतलब मैंने देखा है व्हाइट लोगों के अंदर ये नेचुरली नहीं था, ये सोशली था। जिन लोगों के अंदर नहीं भी था उनके अंदर भी भर दिया जाता था कि नहीं भाई ये ब्लैक पीपल, इनसे दूर रहना है, इनको तो हमें किसी भी तरह का कोई राइट देना ही नहीं है, इनको तो हमें परेशान ही करना है। सो दिस वे he recalls that despite the prison's extreme brutality, there was a silver of hope for peace in the eyes of few guards whose eyes reflected a flicker of humanity. मतलब उस टाइम पे जब वो एक जेल में थे, जब वो तब एक गार्ड की आंखों में उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी, वहीं से उनको एक सिल्वर रे मिली। क्या मिली कि कहीं ना कहीं ठीक है ह्यूमैनिटी आएगी, ये एक नेचुरल फीलिंग नहीं है, जो हेट है ये एक नेचुरल फीलिंग नहीं है, जबरदस्ती इनके दिमाग में डाला गया है। तो उससे उनको होप कीप गोइंग करना, उन्होंने वहां से देखा कि नहीं चेंज आ सकता है और चेंज आएगा। ही केम टू अंडरस्टैंड दैट रिमूविंग समवन एल्स फ्रीडम प्लेसेस द ऑपरेसर इन cage of prejudice because hatred is harder on the human heart than love. तो उनको समझ में आया कि किसी और की फ्रीडम को हटाना, उनको ऑपरेस करना, तो ऑपरेसर भी खुद भी एक पिंजरे में बंधा होता है, तो वो खुद भी ऑपरेस्ड है। अकॉर्डिंग टू मैंडेला, हेटर्ड इज लर्न नॉट इननेट। नफरत सिखाया जाता है, नफरत इनबिल्ट नहीं होता, नफरत किसी के अंदर जन्म से नहीं होती है। बट सिंस लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, इफ वन कुड लर्न टू हेट दे कुड ऑल्सो बी टॉट टू लव। लेकिन क्या है सिखाया जाता है, और जबकि प्यार जो है वो एक नेचुरल फीलिंग है। तो जब हम नफरत करना सिखा सकते हैं तो प्यार तो एक नेचुरल फीलिंग है, वो तो बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। No one is therefore born with the intent to spread hatred. मतलब कोई भी इस इंटेंशन के साथ नहीं जन्म लेता है कि वो नफरत स्प्रेड करेगा, बट दे मे डू सो बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट एडेप्टेशन टू अ वर्ल्ड दैट अपीयर्स टू हैव गॉन एस्ट्रे। मतलब वो जहाँ पर रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ से वो चीज़ें सीख रहे हैं, वहीं से वो चीज़ें उनके पास आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 10। बोर्ड में 101% क्वेश्चन आना ही आना है, तो बहुत ही ध्यान से ये चैप्टर करना है, ज़रूर करना है। एंड hit the like button if you like the video, share it with your friends, also subscribe this channel, and thank you so much.